Hello everyone. Let's continue the activities of second chapter acids, bases and salt. Activity 2.11, it says this: test the pH values of solutions given in table 2.2. So you have to check the pH values. Record your observations. What is the nature of each substance on the basis of your observation? Okay. pH values को find out करना है. Before that, let's just revise what we have learned about the pH values. हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर पढ़ा है ना. तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ pH पेपर. ये pH पेपर होता है. ये इंडिकेटर है. किस चीज़ का इंडिकेशन करता है ये? कि ईच कलर शोज अ सर्टन pH वैल्यू. ठीक है. और हर एक वैल्यू जो होती है pH की, that shows whether a solution is neutral, acidic or basic. So here, when the pH value comes 7, when pH value is equals to 7, that means the solution is neutral. और अगर pH value 7 से ज़्यादा है, इस तरफ है, more than 7, that means the solution is basic. It's a base. और अगर the solution pH value is less than 7, that means the solution is acidic in nature. Fine. तो यहाँ पे कुछ examples दे रखे हैं for pure neutral pure water in blood is what? It's a neutral solution. Its pH value is around 7.47. And the lemon juice, it's acidic because its pH value is about 2.2. Gastric juices, that is HCl, that is found in our stomach for digestion, it's acidic in nature. Basic, the best example for basic solution is sodium hydroxide, the common example that we always use. ठीक है. तो ये था pH पेपर. अगर इसी pH वैल्यूज को हमें पूछा जाए इन टर्म्स ऑफ आयंस, तो दो आयंस पढ़े हमने जब हम एसिड और बेस पढ़ रहे हैं. एक है H प्लस आयंस और एक है OH माइनस आयंस. So if the H plus ions are more in any solution, that means that solution is acidic in behavior. तो अगर H plus ions ज़्यादा है, तो what can you say about the OH minus ions? OH minus ions in that solution will be less. और अगर if OH minus ions are more in any solution, that means that is a basic solution. वो base है एक. ठीक है. और अगर वो बेस है तो उसमें H प्लस आयंस कैसे होंगे? होंगे कम. फाइन. ठीक है. अब इस एक्टिविटी में क्या कहा है कि यू आर गिवन सम सॉल्यूशंस एंड यू हैव टू टेस्ट विद द pH पेपर. कलर देखो pH पेपर पे उसका कितना आता है, उसकी वैल्यू चेक करो pH वैल्यू. और आफ्टर चेकिंग द pH वैल्यू यू हैव टू टेल वेदर द सब्सटेंस इज नेचर ऑफ द सब्सटेंस. नेचर ऑफ द सब्सटेंस मीन्स वेदर इट इज न्यूट्रल, वो न्यूट्रल है, या वो एसिड है, या फिर वो बेस. तो दैट यू हैव टू चेक फ्रॉम द pH वैल्यू. तो पहले है सलाइवा. बिफोर मील, खाना खाने से पहले. तो सलाइवा अगर आप चेक करेंगे तो pH कलर जो है वो आएगा ग्रीन. अब देखो इस पे चेक करो, ग्रीन कलर. ग्रीन कलर इज यहाँ से हल्का हल्का शुरू होता है और यहाँ तक जाता है. दैट मीन्स 7 से कम भी है और 7 से ज़्यादा भी है. ठीक है. हम तो ऐसे ही देखेंगे ना, pH वैल्यू 7 से हम कंपेयर करेंगे क्योंकि 7 क्या है? न्यूट्रल वैल्यू है. तो लेस देन चेक करेंगे, राइट है, राइट हैंड साइड ज़्यादा है कि वो चेक करेंगे. तो दिस इज बिटवीन 6.8 एंड 7.4, मतलब वो 7 से कम भी है एंड इट इज़ मोर देन 7 ऑल्सो. सो इट इज़ स्लाइटली एसिडिक और बेसिक, दोनों हो सकते हैं. सलाइवा आफ्टर मील चेक करोगे तो यू विल गेट अ येलो ग्रीन कलर एंड इट्स pH वैल्यू इज 5.8. अगर आप उस पेपर स्ट्रिप पे चेक करोगे तो, एंड 5.8 मीन्स इट इज लेस देन 7. द pH वैल्यू इज व्हाट? इट इज लेस देन 7 है. तो इसका मतलब बिहेवियर कैसा हुआ? नेचर ऑफ द सब्सटेंस इज व्हाट? इट इज एसिडिक. लेमन जूस, इट विल गिव यू ऑरेंज कलर ऑन द pH पेपर और उसका pH value will be 2.2 and 2.2 again less than 7. That means it is acidic in behavior. Likewise, colored aerated drink, food, that means it is acidic. Here also pH value of carrot juice is less than 7, means it is acidic. Coffee, it is also 4.5, it's acidic in nature.
tomato juice, it's 4.3 pH value, less than 7, acidic. Tap water, yes, it varies. The pH value varies. Why? Because the tap water varies from place to place. So it is written as varied. If you take 1 mole of NaOH, sodium hydroxide, it will give you dark blue color and the pH value is 14. और अगर 14 है, that means इसमें OH minus ions are more. और अगर OH minus ions ज़्यादा है तो हमें पता है वो क्या होता है, base. ठीक है. अब 1 mole of HCl, hydrochloric acid, it will give you red color. It will show red color on pH paper and its pH value is 0. Extreme left side per 0. Extreme this one less than 7, 0 means it's acidic in nature. ठीक है. So this was all about your activity 2.11. Let's move to the activity 2.12. What it says, put about 2 grams of soil in a test tube and add 5 ml of water in it. Shake the contents, filter the contents and collect the filtrate in a test tube. Check the pH of this filtrate with the help of universal paper, indicator paper. What can you conclude about the ideal soil pH of the growth of plants in your region? So, यहाँ क्या करना है आपको कि अपने घर के आसपास किसी भी गार्डन से कहीं से भी you have to collect a soil in a test tube. ठीक है, आप सॉइल ले लो थोड़ा सा 2 ग्राम, उसमें फिर 5 ml ऑफ वाटर डालो. ठीक है, उसको अच्छे से शेक करो, यू विल गेट मडी वाटर सोल्यूशन सा मिल जाएगा. उसको फिर फिल्टर करके दूसरे टेस्ट ट्यूब में ले लो. तो यहाँ पे आपको एक ये फिल्ट्रेट मिल गया, मडी फिल्ट्रेट. इसका फिर पीएच पेपर के साथ पीएच लेवल चेक करो. ठीक है, तो पीएच लेवल चेक करने के बाद हाउ कैन यू से दैट द सॉइल इन योर एरिया is good for growing crop or no? तो पहली चीज याद रखो, an ideal soil pH for growing crops should be between 5.5 to 7. इसके बीच में pH वैल्यू होनी चाहिए. ठीक है, अब आपको पता है anything less than 5.5 अगर होगा that means the soil in your area is having an acidic nature. और अगर 7 से ज़्यादा pH वैल्यू आती है द सॉइल की, सॉइल फिल्ट्रेट की, तो दैट मीन्स योर सॉइल अराउंड योर हाउस इज बेसिक इन नेचर. तो एसिडिक हो, बेसिक ज़्यादा हो, तो बोथ आर नॉट गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप. हमें तो रेंज कौन सी चाहिए, हमें रेंज चाहिए 5.5 to 7 के बीच में. तो वो मेंटेन, तो टू मेंटेन द, लेट्स राइट इट हियर, टू मेंटेन द pH level of the soil, क्या करते हैं हम, we add, use fertilizers. Remember, pH level को maintain करने के लिए we use fertilizer, we add fertilizers to the soil. अगर acidic है तो हम उसमें कुछ basic डालेंगे fertilizer. और अगर आपकी soil बेसिक इन नेचर है तो आप ऑर्गेनिक मैटर डालो, जैसे मैन्योर हो गया है ना, वैसी चीजें डालो ऑर्गेनिक. सो दिस वाज अबाउट योर एक्टिविटी 2.1. फाइन. तो आइडियल टाइप याद रखो, आइडियल सॉइल पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 5.5 to 7 के बीच में. लेट्स मूव टू द एक्टिविटी 2.13. What it says is write the chemical formula of the salts given below. ठीक है, यहाँ पे कुछ salts दिए हैं, उसको आपको क्या करना है, chemical formula लिखना है. If you remember, we have thoroughly done the how to write a chemical formula in our chapter 1. I'll share you the link also. Go through that properly. It will help you a lot in the chemistry part. Fine, but still I will tell you a few of them. We will do it here as an example. Let's take the first salt, that is potassium sulfate. ठीक है, तो पोटेशियम मतलब क्या, K+. ठीक है, उसके बाद सल्फेट, सल्फेट इज व्हाट, SO4 2-. ठीक है, अब क्या होता है कि वी शेयर द आयंस, ये जो नंबर ऑफ आयंस हैं ये एक्सचेंज हो जाते हैं. आयंस, नंबर ऑफ आयंस, ओनली नंबर्स. ठीक है, तो K के पास क्या आ जाएगा, ये 2 विल कम हियर, और इसके पास तो 1 ही था तो 1 विल कम हियर.
तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, K2SO4. ये क्या हो गया, पोटेशियम सल्फेट. ठीक है, see here, this is what we have written here. Let's check the next one. Sodium sulfate. Sodium is what? Na plus. मतलब उसके पास एक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है ना, एक इलेक्ट्रॉन वो दे सकता है, एक कैटायन दे सकता है. Sulfate is what? SO4 2 minus. I have given this chart to learn in chapter 1. Please go through that. And now here what happens? 2 will come here, and this one cation will, number 1 cation will come here. And what will you get? You will get Na2SO4. Sodium sulfate, Na2SO4. Okay, fine. Let's do one more. Calcium sulfate. Calcium is what? Ca2 plus SO4 2 minus. अब ये दोनों 2 है, ठीक है ना, ये 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे. हमें क्या मिल जाएगा, CaSO4, calcium sulfate. So this is how you will write the chemical formula for all the salts here, and this is written here. Magnesium sulfate, MgSO4, copper sulfate, CuSO4, sodium chloride, NaCl, sodium nitrate, NaNO3, sodium carbonate, Na2CO3, ammonium chloride, NH4Cl. ठीक है, तो ये हो गया chemical formulas. Let's see what they are asking next. Identify the acids and bases from the salts. ठीक है, हमें पता है कि how we get salt. Whenever an acid reacts with an base, we get salt. करेक्ट, तो मतलब कि जो सॉल्ट है वो एसिड और बेस से मिलके बनी है. तो यहाँ पे उन्होंने सॉल्ट तो दे दिया आपको, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज you have to separate, you have to find out which acid is used and which base is used to form the particular salt. ठीक है, तो जब भी आप सॉल्ट और बेस को अलग करोगे, याद रखना कि किसी भी सॉल्ट में, जैसे हम ये पहला ले लेते हैं, द फर्स्ट वन दैट इज पोटेशियम सल्फेट. लेट मी राइट द फॉर्मूला हियर, K2SO4. तो जो मेटल पार्ट है, दिस विल ऑलवेज गिव यू कैटायन. Cations always come from the base, ये भी याद रखो. Cations always comes from the base. और जो anions है, that comes, anions means negative ions, cations means positive ions. तो जो anions है, that always comes from the acid. ठीक है, तो cations कहाँ से आते हैं? Cations comes from the base and anions comes from the acid part. तो चलो, पोटेशियम सल्फेट में देखो, पोटेशियम इज के, कैटायन आएगा तो मतलब ये बेस बनाएगा, तो बेस क्या हो जाएगा आपका, KOH. SO4 सल्फेट मतलब ये एसिड पार्ट है, एनायन देगा मतलब कि H2SO4. सल्फेट को देखते ही समझ जाओ कि ये सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4. तो ये जो आपका पहला पोटेशियम सल्फेट सोल्यूशन था, उसमें एसिड कौन सी आई, H2SO4, बेस कौन सा आया, KOH. इन दोनों को मिला के देन यू गॉट दिस सॉल्ट. लेट्स ट्राई वन मोर. नेक्स्ट वन इज सोडियम सल्फेट, Na2SO4. तो ये तो आपको देख के ही पता लग गया कि सल्फ्यूरिक एसिड है ना. तो H2SO4 ये एनायन पार्ट देगा, प्लस ये हो गया आपका एसिड, एनायन आया है तो एसिड. Na क्या होगा, Na इज योर बेस, तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड. बेस मीन्स OH आयंस आर मोर, है ना. तो इसलिए यहाँ पे देखो एसिड कौन सी है, H2SO4. जब NaOH के साथ बेस के साथ मिला, यू गॉट द सॉल्ट. ठीक है, चलो नेक्स्ट एक और ट्राई करते हैं. लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन. ओके, so here it is calcium sulfate, CaSO4. By looking at it again, we know that the first part will give you cation, that means base, that is CaOH twice, calcium hydroxide. Let me correct it here, you can also write this, but OH twice. ठीक है, प्लस सल्फेट है, कौन सी एसिड होगी, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4. So the base is calcium hydroxide, the acid is a sulfuric acid. Let's do next one, MgSO4. यहाँ पे करते हैं MgSO4. तो ये पार्ट विल गिव यू बेस, तो Mg
NaOH twice magnesium hydroxide plus sulfuric acid H2SO4. चलो यहाँ से एक और एग्जाम्पल लेते हैं. ओके ये लेते हैं NaNO3 सोडियम नाइट्रेट. ठीक है, तो ये पार्ट विल गिव यू व्हाट, बेस NaOH प्लस नाइट्रेट. नाइट्रेट विल गिव यू HNO3. This will give you the acid. So this is the acid part, this is the base part. Clear? Fine? Okay. So next part what they are asking is, salts having the same positive or negative radicals are said to belong to a same family. For example, NaCl, Na2HO4 belongs to the same sodium family. Similarly, oh, okay fine. What they are saying is, salt जिसमें सेम नेगेटिव और पॉजिटिव रेडिकल्स होते हैं तो वो सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं. जैसे यहाँ पे चेक करो, एक ये है सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट. तो सब में क्या है, सोडियम 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 सोडियम. तो ये कौन सी फैमिली कहेंगे इसको हम कहेंगे सोडियम फैमिली, फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट्स. ओके, तो ऐसे आप ये भी देख सकते हो, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट. तो सल्फेट सल्फेट आ रहा है तो ये कौन सी फैमिली हो जाएगी, दिस विल बी द सल्फेट फैमिली. तो यहाँ पे देखो हमने इसी टेबल में से कुछ फैमिलीज को अलग किया है. एक है सोडियम सॉल्ट, फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट, family of sulfate salt, family of chloride salt. Okay? Let's see the next activity, 2.14. What it says is collect the following salt samples. Okay? ये salt samples आपको collect करने हैं. Check the solubility in water. Use distilled water only. तो आपको चेक करना है कि क्या ये water में dissolve होते हैं, salts की नहीं होते हैं. ठीक है, तो लेकिन you have to use only the distilled water. What is the difference between a normal water and distilled water is, distilled water is a pure form of water that does not contain any ions. Remember, distilled water have no ions. कोई ions नहीं है इसमें. It contains only hydrogen and oxygen atoms. ठीक है, distilled water has neutral pH. Neutral pH means distilled water का pH level कितना होगा, 7. Which means it is neither acidic nor बेसिक. ठीक है, तो डिस्टिल्ड वाटर लेके इन सभी सॉल्ट्स को हमें क्या करना है, चेक करना है कि वेदर दे डिसॉल्व और नो. ओके, नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इज चेक द सॉल्यूशंस ऑन लिटमस पेपर एंड फाइंड द पीएच वैल्यू फाइंड आउट करनी है. देन यू हैव टू चेक वेदर द सॉल्ट इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस टू फॉर्म द सॉल्ट. ठीक है, तो मतलब कि ये जो सॉल्ट है आपके, सबसे पहले उसका पीएच लेवल चेक करो. ठीक है, फिर चेक करना, यू हैव टू टेल कि ये जो सॉल्ट है वो किस किस एसिड और बेस को मिला के बना है. वी नो दैट जस्ट नाउ इन द प्रीवियस एक्टिविटी वी हैव डन दैट व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस इट गिव्स यू द सॉल्ट. तो हर एक सॉल्ट में कौन सा एसिड कौन सा बेस है, दैट यू हैव टू सेपरेट इट. ओके, एंड देन सी हियर, फर्स्ट वन इज सोडियम क्लोराइड, pH level is 7. Sodium chloride, let me do it here, NaCl. The first cation comes from the base. That means it forms the base NaOH plus chlorine. And ion will come from the acid. तो acid कौन सी होगी chlorine के साथ, HCl, hydrochloric acid. And it will form NaCl salt. ठीक है, तो this is what it is written. Acid used is HCl, base used is NaOH, and thus we got the sodium chloride salt. And this sodium chloride salt is what? It's nothing but the common salt we use in the kitchen. So it dissolves in the water. Next is potassium nitrate, pH level is 7, and acid used is nitrate है तो H, nitric acid, है ना? Potassium oxide is the base, and it is exceptionally soluble. इसी तरह बाकी के salts भी हैं. You can check it from here. ठीक है, देखो यहाँ देखो copper sulfate, it is more than 7. pH level is more than 7. तो ये अच्छा, इसमें ये भी बताना है कि whether the salt which we get is acidic in nature or basic in nature.
हमने सॉल्ट पढ़े थे, 3 तरह के होते हैं कि एक होता है एसिडिक सॉल्ट, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और जो आपका बेस होता है वो वीक होता है. तो व्हेन वीक बेस रिएक्ट्स विद स्ट्रॉन्ग एसिड वी गेट एसिडिक सॉल्ट. और दूसरी सॉल्ट हमने कौन सी पढ़ी थी, बेसिक सॉल्ट. इसमें क्या होगा, आपका जो एसिड होगा दैट विल बी वीक, वीक एसिड, और बेस कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तब आपको मिलेगी बेसिक सॉल्ट. ठीक है. लाइकवाइज न्यूट्रल, दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस विल गिव यू न्यूट्रल सॉल्ट. तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा देखकर कि दिस इज pH लेवल इज 7, न्यूट्रल सॉल्ट न्यूट्रल सॉल्ट न्यूट्रल सॉल्ट न्यूट्रल सॉल्ट. यहाँ पे pH लेवल इज मोर देन 7 यानी कि बेसिक सॉल्ट है ना. 7 से ज़्यादा pH मीन्स बेसिक. लेस देन 7 pH वैल्यू मीन्स इट इज एसिडिक इन नेचर. और लेस देन 7 ये कौन सा सॉल्ट है, दिस इज ऑल्सो एसिडिक सॉल्ट. लेस देन 7 मीन्स एसिडिक सॉल्ट. और यहाँ पे मोर देन 7 था तो ये बेसिक सॉल्ट था. तो इनका pH लेवल 7 था तो these are neutral salts. Clear? Okay. Now let's move to the next activity, that is 2.15. What it says is heat a few crystals of copper sulfate in a dry boiling tube. What is the color of the copper sulfate after heating? Do you notice water droplets in the boiling tube? Where have these come from? Add 2-3 drops of water on the sample of copper sulfate obtained after heating. What do you observe is the blue color of the copper sulfate restored. Okay, let's first see what is the apparatus setup. ये है, एक आपको टेस्ट ट्यूब लेनी है, फाइन. उसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस के क्रिस्टल्स लेने हैं. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के क्रिस्टल्स, सॉल्ट है ये, क्रिस्टल CuSO4 कॉपर सल्फेट. उसको हीट करो. हीट करने के बाद आपको यू विल ऑब्जर्व दैट कि यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे. तो दे हैव आस्क्ड कि वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आए, क्योंकि हमने तो सॉल्ट लिया था, पानी तो ऐड नहीं किया. तो फ्रॉम वेयर दिस वाटर ड्रॉपलेट्स हैव कम, लेट्स सी. द फर्स्ट थिंग, जब हम कॉपर सल्फेट की बात करते हैं तो कॉपर सल्फेट इज कॉपर सल्फेट 5H2O. This is hydrated copper sulfate. Hydrated copper sulfate. That means this salt has 5 molecules of water in it, which is known as water of crystallization. During the theory part, we have done this very nicely. ठीक है ना. तो जिस salt में भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं, उसे बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट. तो कॉपर सल्फेट सॉल्ट जो है, क्रिस्टल जो है, ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है. तो इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है ब्लू. ठीक है. तो जब आप इसको हीट करोगे, व्हेन यू विल हीट इट, व्हाट विल हैपन, ये जो 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, इट विल गेट सेपरेटेड. क्या मिलेगा आपको, CuSO4 प्लस H2O. वाटर मॉलिक्यूल्स विल गेट इवेपोरेटेड. तो ये वाटर मॉलिक्यूल जो यहाँ पर आए, ये कहाँ से आए, यही माने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो था वो वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वी कैन सी इट इन द टेस्ट ट्यूब. ठीक है. तो ये ब्लू कलर किस लिए था, ये भी हमें पता लग गया कि दिस इज ड्यू टू द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. आफ्टर हीटिंग इट विल कन्वर्ट द ब्लू कलर विल चेंज इनटू व्हाइट कलर. व्हाई, बिकॉज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल गया, सेपरेट हो गया, तो वाइट कलर में हो जाएगा. तो यहाँ से हमने क्या, 3 चीज़ें हमने यहाँ पे ऑब्जर्व, जो इन्होंने पूछा ऑब्जर्व करो. पहला, व्हाट इज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग. तो बिफोर हीटिंग तो वो ब्लू कलर का था, आफ्टर हीटिंग वो कौन सा कलर हो गया, वाइट. क्यों हो गया, क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो था, 5 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर वो इवेपोरेट हो गए. तो डू यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट्स, यस. Where have these come from? This is nothing but the water of crystallization from the copper sulfate salt. तो अब ये जो white आपको मिला है, उसमें उन्होंने बोला है फिर से इसमें क्या करो, ये जो white कलर का मिला है इसमें फिर से add few drops of H2O. तो क्या होगा, it will again form CuSO4
pentahydrate. Penta means 5 molecules of water. ठीक है? This was the experiment. Let's see here. Water of crystallization क्या है? Water of crystallization is a fixed number of water molecules present in one formula unit of salt. ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल देखो, कॉपर सल्फेट 5H2O, तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स रहेंगे, ये नहीं मर्जी कि हमने 5, 6, 7, 8 कुछ भी लिख दें. कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट मतलब कि 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रेट मीन्स वाटर. अब देखो नेक्स्ट क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. डेका मीन्स 10 water molecules and this is nothing but the formula of your washing soda. Next is copper sulfate dihydrate. Dihydrate means 2 molecules of water and this is also known as gypsum. Calcium sulfate hemihydrate. Hemi means half molecule of water, which we call it as POP, plaster of Paris. So these are the examples. They may ask you, give an example of salts of water of crystallization. ठीक है, तो अब यहाँ देखो, this ये कलर होता है actual color of copper sulfate with 5 molecules of water. On heating, this gives you white color. ठीक है, अच्छा, उसके बाद जब आप heat करोगे तो see, you will get the vapors like this. Can you see these vapors? Fine? Okay, let's see the chemical equation. Copper sulfate solution, on heating you will get copper sulfate and 5 molecules of water get separated. On adding water, इसमें आप दोबारा जब water add करोगे तो क्या होगा, again you will get the see, इसमें पानी add किया, दोबारा blue color आ गया. Okay, so this was all about your activities of 2.15. Let's see, find few observations that we have done here. The color of the copper sulfate crystal changes from blue to white. Water droplets can be clearly observed on the walls of the boiling tube. White copper sulfate turns blue on adding 2-3 drops of water. Again, it is a reversible chemical change. Reverse हो गया ना? पहले blue, फिर white, फिर से उसमें पानी डाला, blue हो गया. So with this, we finished the chapter. Okay, and in the next video, we will start the third chapter. That is here, I think, metals and non-metals. Thank you and bye.